Hello, my dear trainees. A very good evening. Well, I am your trainer, Prerna Thakkar. Welcome you to the training of COVID Care Assistant. The training has been facilitated by Delhi Police through the knowledge partner IACT Education. So, first of all, कैसे हैं आप सब? How are you all doing? Hope you all are doing great, right? Great. Well, तो आज हम क्या करने वाले हैं? हमने बहुत कुछ स्टडी किया प्रीवियस सेशंस में which I delivered to you and I really like the dedication that you have brought up in the training session. आपकी ये dedication, आपका ये स्किल लेने का एक जज्बा, it's really, I really appreciate that. So, हमने पढ़ा कि कोरोना वायरस, what exactly coronavirus, what exactly is COVID-19, ये बीमारी क्या है, किससे होती है? SARS-CoV-2 virus, right? What does it do? It causes COVID-19 disease, right? So, apart from this, we also learned अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो क्या सिम्टम्स आते हैं, right? We learned about the symptoms as well. और वो symptoms mild से mild, then moderate and then severe तक जा सकते हैं. Some people come when they catch up the infection. कभी कभी कुछ लोगों को बहुत mild symptom आता है, just like flu. इसमें जो symptoms आते हैं, it's very much related to flu symptoms like cough होना या फिर little cold, right? या फिर little you feel little difficulty here, like जैसे कि एक cough में थोड़ा बहुत आपको throat में लगता है irritation in the throat, और mild fever it can happen. तो आपको cold, cough, fever इस तरह के symptoms. अब मॉडरेट में इसके अलावा इसमें बहुत तरह के सिम्टम्स आते हैं लाइक लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी केसेस में देखा गया रेड रैशेस ऑन द स्किन एरियाज या फिर डिहाइड्रेशन, वी लर्नड अबाउट इट. और जब ये सीवियर केसेस में ये एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर हैविंग कॉफ, कोल्ड और समथिंग, फीवर, kind of headache, और इसमें fatigue बहुत फील होता है, like body टूट रही है, it's like that. So you feel fatigue, थकान फील होना, महसूस होना, body aches. Apart from this, लेकिन जब ये सीवियर केस में जब ये सीवियर होने लगता है तो किस तरह का सिम्टम आने की संभावना रहती है, किस तरह के सिम्टम्स आते हैं, that is all about like somebody is feeling like difficulty in breathing. When the virus starts impacting our lungs, right? However, then a person really require a medical emergency, require some healthcare specialist. तो सबसे पहले ये हमने ये चीज़ें स्टडी की कि चाहे वो माइल्ड है, मॉडरेट है, माइल्ड और मॉडरेट केसेस में you do not require some special treatment. आपको अपने आप को सेफ जोन में करना, आइसोलेट करना है औरों से, ताकि आप वो इन्फेक्शन दूसरों को ना दे पाएँ. एनीवेज हम यहाँ पे ये सब अभी पढ़ने वाले हैं, अगर कैसे इन्फेक्शन होता है, how the coronavirus, how the SARS-CoV-2 spreads infection in the body, right? What happens inside the body, right? When the virus enters inside the healthy body cells. So we will study all in today's session. Well, stay focused here, okay, and be more energetic, okay. So, well, you all are stars, so I really like, and you are always energetic in the session, so maintain that, and do keep your notebook and your pen handy. I am giving you few seconds. अगर जिसके पास अभी भी कोई नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठा तो प्लीज़ पहले लेकर आओ, so that whatever I will be delivering, कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगी, so that you can note it down अपनी समझ से, जो आप समझें, जो मैं समझाऊं, आप उसको
अपने तरीके से नोट डाउन करें. Whatever I am writing, you note it down too. Okay. This will help you to retain whatever I delivered. You can retain that, what ma'am delivered in that particular session. You will be able to recall through your notes. Okay. आपको नोट्स के ज़रिए से एक मेमोरी बेस रह जाएगा कि हाँ क्या पढ़ाया गया था उस सेशन में. ठीक है जी. तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं, हमने एंड येस बिफोर मूविंग दिस हमने ये भी पढ़ा कि कोरोना वायरस, हाउ दिस डिसीज कोविड-19 स्प्रेड्स, ओके, और कैसे उसे बचा जा सकता है, हाउ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स. सो जो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम यहाँ पे अभी समझने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेक दिस आउट. ओके, let's move to the PPT. Let's move ahead. What happens if you get coronavirus? What exactly happens in the patient's body when somebody gets infected by coronavirus? How your body responds to this new coronavirus infection depends on. चलिए जी इसको समझते हैं. आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है इस न्यू कोरोना वायरस के, क्योंकि कोरोना वायरस ये कोई नया नहीं है. अभी वाला कौन सा है? इट्स ए नोवल कोरोना वायरस. इट्स ए न्यू कोरोना वायरस. न्यू कोरोना वायरस विच इज नोवल कोरोना वायरस. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कि किसकी बॉडी में. आपने देखा हर एक की बॉडी एक जैसा रिएक्ट नहीं करती, रिस्पॉन्स नहीं देती अगेंस्ट सम इन्फेक्शन. किसी को माइल्ड सिम्टम आता है, किसी को मॉडरेट, किसी को कोई बिल्कुल ही डेंजर जोन में चला जाता है. और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? आपकी एज फैक्टर पे. आपने देखा जो पिछले साल पेंडेमिक आया, पिछले साल जब आया था कोरोना वायरस, तो ये कहा गया था कि एल्डरली पीपल दे शुड स्टे एट होम. जितने बड़े, ताकि जो एजेड लोग होते हैं, एल्डरली पीपल, दे आर मैनी आर सफरिंग थ्रू क्रॉनिक डिसीजेज. काफ़ी टाइम से, लंबे समय से कुछ लोग बीमार चल रहे होते हैं, या कुछ लोगों में कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली बड़े जो एल्डरली पीपल, देयर इम्यून सिस्टम गेट्स वीकन विद एज. एज के साथ आपका इम्यून सिस्टम भी, आपकी जो डिफेंस, एक बीमारी से लड़ने की क्षमता, वो भी घटनी शुरू होती है. राइट. स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सनस बॉडी, कि किसी की बॉडी एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जो बाहर से एक फॉरेन पार्टिकल ने जो एंट्री ली, जो हमने कल पढ़ा था, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन एजेंट जो बाहर से, और वो फॉरेन एजेंट क्या क्या हो सकता है? वायरस, बैक्टीरिया, I write it down on the board. Foreign particle ये क्या है? It can be virus और बैक्टीरिया. ठीक है. और इस फॉरेन पार्टिकल को हम और क्या कहते हैं? एंटीजन. क्या कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में? एंटीजन. जब कोई एंटीजन आपकी बॉडी में, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन बॉडी, फॉरेन एजेंट, ठीक है, अटैक करता है, यू राइट इट डाउन. आप पार्टिकल की जगह यू राइट इट डाउन. बेसिकली आई वुड से एज एजेंट, फॉरेन एजेंट. उसको क्या कहेंगे? आपकी बॉडी पे अटैक करता है, तो आपकी बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो आपकी बॉडी का है, आपकी बॉडी लड़ना शुरू करती है. और जब वो किसके थ्रू, जब भी कोई एंटीजन अटैक करेगा, आपकी बॉडी क्या करेगी? एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म में फाइट करेगी. उसके अगेंस्ट क्या डेवलप करेगी? एंटीबॉडीज. ठीक है जी. ये एंटीजन है. और एंटीजन क्या हो सकता है? या वायरस और बैक्टीरिया. और ये फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं.
ठीक है, मान लो कोई किसी फंगस का अटैक हो गया हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन पे, किसी पार्ट पे, और ये फंगल इन्फेक्शन स्किन डिसीजेज में आप बहुत देखते हो, कईयों की स्किन पे एकदम रैशेस पड़ जाना, वाइट हो जाना, दैट इज़ ऑल थ्रू कुछ केसेस में ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। सो एंटीजन, इसने बॉडी में क्या कर लिया, एंट्री ली, और जब इसने एंट्री ली तो अपनी बॉडी, हमारी बॉडी ने क्या करना शुरू किया, बॉडी स्टार्टेड फाइटिंग, ठीक है, अगेंस्ट एंटीजन। ठीक है जी, अब इसके अगेंस्ट बॉडी क्या डेवलप करना शुरू कर देगी, एंटीबॉडी। भैया कहाँ से आ गया ये, अब ये एंटीजन क्या एंटीजन क्या हो सकता है, वायरस और बैक्टीरिया। फाइन, तो अब क्या हुआ, ये वायरस या बैक्टीरिया, एंटीजन कैन बी वायरस और बैक्टीरिया। अब जब इसने बॉडी में एंट्री ले ली आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी का अपना एक डिफेंस सिस्टम है, और ये फाइटिंग कौन कर रहा है, बॉडीज डिफेंस सिस्टम, और वो डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बॉडी ने क्या, अरे तेरे को तो मैं बताता हूं, ठीक है, तो बॉडी चुप नहीं बैठी रहेगी, हमारी बॉडी का भी अपना एक पावर है अपने आप को डिफेंस करने की, हमारे अंदर मैकेनिज्म है ऐसा हमारी बॉडी में। तो वो एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, खिलाफ, ठीक है, एंटीजन मतलब जो कि कुछ अच्छा करेगा नहीं, काम खराब करने आ रहा है बॉडी का, ठीक है, एंटीजन वो क्या कर रहा है, बॉडी पे अटैक किया, बॉडी ने फाइट किया, बॉडी ने क्या डेवलप कर दिया, एंटीबॉडी, खिलाफ, एंटी मतलब अगेंस्ट, बॉडी मतलब जो बाहर की फॉरेन बॉडी आई, फॉरेन बॉडी क्या है, वो वायरस या बैक्टीरिया, जो वो बाहर से आई उसने उसके खिलाफ लड़ने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी ने क्या डेवलप किया, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट लड़ने का जो एक मैकेनिज्म डेवलप किया बॉडी ने, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ओके, so I was telling you how your body responds to this new coronavirus infection depends on your, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी नए कोरोना वायरस से कैसे रिस्पॉन्ड करती है इफ़ यू गेट इन्फेक्टेड और somebody gets infected. It depends upon की एज फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द एज फैक्टर। यूजुअली देखा गया है, कभी देखना बच्चों में कोरोना वायरस, किड्स, चिल्ड्रन हु got infected by coronavirus, they recovered quick. इसका भी मैं कुछ आपको हेल्दी रीजंस कुछ थे, वो मैं आपको हेल्दी रीजंस है कुछ जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो एज फैक्टर मैटर्स, इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम कैसा काम, आपका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी का है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ठीक है जी, आपने देखा कुछ लोग बहुत मतलब कुछ भी खाते हैं, इजीली डाइजेस्ट होता है, एंड दे आर मोर मीन्स दे लुक ऑलवेज हेल्दी, नो डिसीज, नो प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द टाइम यू फाइंड देम हैप्पी, स्माइलिंग, यू नो, वो कुछ भी इजीली मीन्स दे कैन, अगर कुछ प्रॉब्लम मतलब उनको आपने कभी नहीं देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उनको कभी बीमार पड़े हों अपनी लाइफ टाइम में, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इम्यून सिस्टम, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया तो वैसे भी कहीं ना कहीं ये एजेंट्स तो घूम ही रहे हैं सराउंडिंग में, राइट, एंड आवर बॉडी इज फाइटिंग विद देम इन कंटिन्यूएशन। वेल, जनरल हेल्थ, आपकी जनरल हेल्थ कैसी है? जनरल हेल्थ फॉर एग्जांपल, कोई बीमारी तो नहीं है पहले से, कोई क्रोनिक प्रॉब्लम, क्रोनिक लंबे टाइम से कोई बीमारी चलती आ रही हो। क्रोनिक डिसीज मीन्स लंबे समय से कोई बीमारी चलती आ रही हो। ठीक है, जनरल हेल्थ वैसे कैसा रहता है इंसान, मतलब जल्दी बीमार तो नहीं पड़ता ना, ठीक रहता है ना, जल्दी रिकवरेबल है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बॉडी जल्दी रिकवरिंग कर जाती है। सच एनी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस, कोई पहले से ही बीमारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रोनिक डिसीज़, किसी को, कई लोगों को पहले से कुछ बीमारी, लाइक सम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, कैंसर एंड सम हार्मोनल इश्यूज़,
और कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है। उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं इंसान कभी कोई पर्सन बहुत टाइम पहले इतना बीमार पड़ा, इतने टाइम के लिए लंबे समय तक मेडिसिन का भी चलना, एंटीबायोटिक्स का भी चलना, ये सारी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स हैं जिस वजह से कोरोना के इन्फेक्शन के, कि वो कोरोना कितना इम्पैक्ट करता है किसी पर्सन को, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये कंडीशन सच एज, जो मैंने अभी आपको बताया, कंडीशन सच एज डायबिटीज़, लंग, किडनी और हार्ट डिसीज़, किसी को इस तरह की कोई बीमारी हो लंग से रिलेटेड, राइट, मे बी समबट, अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, ठीक है, या फिर किसी को हार्ट डिसीज़ है, ठीक है, या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पर्सन इज़ डायबिटिक, या किसी को हाई बीपी का इशू है। ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। दिस इज कैन मेक यू मोर वल्नरेबल टू कोविड-19। वल्नरेबल मतलब कि आपको रिस्क जोन में आने के लिए, कोविड-19 के रिस्क जोन में आने की, अगर आप, ये सारे फैक्टर्स बहुत उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर किसी को ऐसी बीमारी है, डायबिटीज़ या लंग, किडनी और हार्ट डिसीज़ है, किसी को हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है, किसी को ओबेसिटी, मोटापा ज़्यादा है, तो ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि कोविड-19 को होने में, ज़्यादा और बुरे नोट पे होने में, ठीक है। इट्स पॉसिबल टू हैव द इन्फेक्शन एंड नॉट शो एनी कोरोना वायरस सिम्टम्स एट ऑल। ऐसा भी हो सकता है somebody got infected by coronavirus but कोई सिम्टम ही नहीं आया। ऐसे केसेस क्या होते हैं? एसिम्टोमैटिक। They are infected, the person is infected but the body is showing no symptoms. According to the CDC is Center for Disease Control, 30% of COVID केसेस कैन बी एसिम्टोमैटिक। ऐसा देखा गया है कि 30% जो कोविड केसेस होते हैं वो एसिम्टोमैटिक हो सकते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि अब कुछ लोग बाहर गए, कुछ लोग घर पे ही रहते हैं, फॉर एग्जांपल घर पे रहते हैं, क्योंकि आजकल जब से ये लॉकडाउन हुआ, सो मेनी पीपल आर स्टेइंग एट होम, दे आर नॉट गोइंग टू देयर ऑफिसेज, दे आर नॉट गोइंग, दे जस्ट गोइंग आउट फॉर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, टू बाय डेली एसेंशियल्स। बाहर निकले तो यूजुअली डेली एसेंशियल्स या एसेंशियल्स लेने के लिए गए। फॉर एग्जांपल यू हैव गॉन टू बाय अ ग्रॉसरी, राशन, वो उसकी तो डेली रिक्वायरमेंट है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने जाना, या फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट। आजकल लेकिन लोगों ने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है लॉकडाउन में, बाहर जाने की बजाय, बाहर का एक्सपोजर लेने की बजाय, कि घर पे ही ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेना, टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम कैचिंग द इन्फेक्शन। तो ये है सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। उनके अकॉर्डिंगली 30% कोविड केसेस कैन बी एसिम्टोमैटिक विच डू नॉट शो एनी सिम्टम। एसिम्टोमैटिक मतलब विच डू नॉट शो एनी सिम्टम, ठीक है। अब कोरोना वायरस स्ट्रक्चर, अब कोरोना वायरस स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि कोरोना वायरस एग्जैक्टली कैसे इसकी बॉडी बनी है। तो लेट्स सी, ये राउंड आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द एनवेलप। किसी चीज की कवरिंग को क्या कहते हैं? एनवेलप। दिस इज द एनवेलप। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, ये राउंड राउंड राउंड, ये स्पाइकी प्रोटीन, राइट, ये प्रोटीन स्पाइक्स हो गए। इस कवरिंग को क्या कहते हैं? जैसे एक लिफाफा है, लिफाफे में आप क्या डाल रहे हो? चिट्ठी डाली, आपने लेटर डाला, तो बाहर के उस कवर को क्या कहोगे? एनवेलप। सो ऐसे इसकी ये कवरिंग है, इट्स एन एनवेलप, ठीक है। एंड दिस इज, ये इसकी बॉडी पे इस एनवेलप के पास ऐसे प्लेस चिपका हुआ एम प्रोटीन है। एम प्रोटीन एक तरह का प्रोटीन। अब यहां पे चलते हैं आगे, ये देखिए, दिस इज शेडेड एज स्काई ब्लू शेड,
दिस इज हेमाग्लूटिनिन एस्टेरेज डाइमर। जहां पे ये एज लगता है ना वो एंजाइम से रिलेटेड होता है सर, एंजाइम। ठीक है, दिस इज, ये मैंने आपको कल बताया था, ये प्रोटीन स्पाइक्स, इसको क्या नाम दिया गया? स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन एस, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन एस। नाउ अब ये अंदर क्या है इसके मटेरियल, इस एनवेलप के अंदर क्या है? इसके अंदर है दिस आरएनए एंड प्रोटीन। यू जस्ट रिमेंबर इतना प्लस ये एस आरएनए स्पेसिफाई करके बताया गया आरएनए कौन सा। तो ये आरएनए क्या है, होता है जेनेटिक मटेरियल। जैसे हम लोगों के सेल्स में क्या है, डीएनए। इस आरएनए की क्या क्षमता है, ये रेप्लिकेट करता है किस तरह से, वो मैं अभी आगे हम पढ़ेंगे। आरएनए ये अपनी रेप्लिकेट मतलब कॉपीज बनाना, रेप्लिकेट करता है मतलब इट मेक्स कॉपीज। ठीक है, तो ये अंदर क्या है इसके, दिस इज आरएनए, दिस इज एनवेलप। मोटा मोटा आप याद रखो, आरएनए, दिस इज एनवेलप, ये बाहर का इसका जो हमने पढ़ा स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है, हीमोग्लूटिनिन एस्टेरेज डाइमर। ठीक है, एंड देन दिस इज अ प्रोटीन, ये एक तरह का, दिस इज एम प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन भी अलग अलग तरह के होते हैं, दिस इज एम। अब यहाँ पे 100 to 160 ये नैनोमीटर, ये इसका, ये पूरा इसका वो दे दिया साइज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और जो भी तुम्हारे, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो, प्लीज नोट इट डाउन। वी विल हैव आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन where I will be answering all your questions. Okay, so well, move on. अब चलते हैं, what happens in your body when you contact the coronavirus. आपकी बॉडी में क्या होना, मतलब अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन है तो उसकी बॉडी में किस तरह से ये इन्फेक्ट करता है, क्या होता है, we will learn all this going forward. A contagious मैंने कल बताया था क्या होता है। कंटेजियस, जब आपने देखा है वो बीमारी छूने से, किसी चीज़ को, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के छूने से भी फैल सकती है। हम कहते हैं ना कभी कभी, क्या ये बीमारी छूने से भी फैलती है। When some disease can be spread by touching somebody or something, जब किसी इंसान को छूने से, जो इन्फेक्टेड है उस डिसीज से, उसको छूने से, कंटेजियस मीन्स बीमारी का फैलना उस इन्फेक्टेड पर्सन को छूने से या किसी इन्फेक्टेड चीज़ को छूने से जो फैलती है उसे कंटेजियस कहते हैं। एंड दिस डिसीज इज हाईली कंटेजियस, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है। दिस डिसीज इज COVID-19 is highly contagious. A contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. सबसे पहले इसका अटैक कहाँ होता है? पहले तो थ्रोट में रहता है, उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू होता है। हमने कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लो डाउन, इनटू द लो डाउन। अब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं आपको, ये है थ्रोट जो आता है ना, ये आपका बॉडी सिस्टम है, ये थ्रोट का रीजन है, थ्रोट। ठीक है, ये है लंग्स, दिस इज लंग्स, किस में आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो स्टार्ट हो रहा है आपके यहाँ से, नोज वाले पार्ट से, देन थ्रोट। ठीक है, थ्रोट्स के नीचे क्या जाती है, दैट इज
ट्रैकिया, विंड पाइप, मैंने आपको बताई थी ये चीज। तो विंड पाइप, यहां से ये विंड पाइप ट्रैकिया है। वेट, आई राइट इट डाउन अगेन। Let me go to the board for you. I think that will be more feasible for you to understand this particular thing. Okay, now keep notebook and pen handy. Well, ये हमने लिया white marker. Well, ये मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, कल हमने किया था ना। अभी जल्दी जल्दी से समझ लो, फिर हम दौड़ लगाते हैं। ठीक है जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये वायरस कहाँ से कैसे अटैक किया उसने पहले। ये एंटर्ड नोज रीजन, नोज से फिर कहाँ जाता है ये थ्रोट में, थ्रोट से ये वाला जो पार्ट है ना नोज और थ्रोट, दिस कम्स अंडर upper respiratory system. This is T, upper respiratory system. अब थ्रोट के बाद कहाँ चला जाएगा ये? You move on. लो, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के नीचे उतरना शुरू होगा ये ट्रैकिया, हमने पढ़ा था ट्रैकिया। ये क्या है? ट्रैकिया विंड पाइप। आप अपने नोट्स में देखना, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप देखो, ट्रैकिया विंड पाइप से किस में जाता है वो? लंग्स में। ये जो ट्रैकिया और लंग्स है ये किस में आ जाते हैं? दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर, लोअर, LOWER, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। प्रॉब्लम कब होती है? थ्रोट तक है तो ठीक है, जैसे ये नीचे जाता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है और लंग्स तक पहुंचता है, एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू होती है। तो दिस इज ऑल। आई एम गोइंग बैक टू द स्लाइड नाउ। ओके, वेल, सी हियर, a contagious virus infection that attacks primarily, पहले जो थ्रोट कोर, ये कंटेजियस वायरस है जो इंसान से इंसान में फैलता है। ठीक है, जो आपके थ्रोट को और फिर लंग्स में इन्फेक्शन देता है। ये थ्रोट हो गया, ये यहाँ से नोज रीजन आ गया, ये माउथ, दिस इज माउथ, and then this is throat, throat के बाद ये डिवाइड, lungs। ठीक है, ऐसे ट्रैवल किया वायरस मूव करना शुरू करता है आपकी बॉडी में एंट्री लेने के बाद। थ्रोट में जब तक है वहीं किल हो गया, वेरी गुड। बट जब वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है तो प्रॉब्लम, असली जड़ प्रॉब्लम की वहीं से शुरू होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन। व्हाट हैपेंस इफ यू गेट कोरोना वायरस? क्या होता है जब आपको कोरोना वायरस से अगर आप इन्फेक्टेड हो जाओ? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कोरोना वायरसेस। सम गिव यू द कॉमन कोल्ड। कुछ कोरोना वायरस ऐसे हैं जो कॉमन कोल्ड करते हैं बस।
ये जो नया है ना, ये कह रहे हैं जो न्यू कोरोना वायरस बिहाइंड 2019 से अभी तक, ये 2019 में आया था और अभी तक 2021 को में इम्पैक्ट कर रहा है। इसने पैंडेमिक किया 2019 से 2021 तक, पैंडेमिक कॉज किया एंड इलनेस कॉल्ड कोविड-19। बट ये जो नए तरह का कोरोना वायरस आया, इसने नई बीमारी दी जिसका नाम दिया गया कोविड-19। अ वायरस इन्फेक्ट्स योर बॉडी बाय एंटरिंग हेल्दी। वायरस कैसे आपकी बॉडी को अब इन्फेक्ट करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। वो क्या करता है, जैसे उसने एंट्री ली आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में क्या होते हैं, हेल्दी सेल्स, उसको इन्फेक्ट करना शुरू करता है। जो हेल्दी सेल्स है उनको टारगेट बनाता है अपना। देयर द इन्वेडर मेक्स कॉपीज। इन्वेडर मतलब अंदर एंट्री लेने वाला, और वो कौन है, वायरस। इन्वेडर इधर क्या है, विच एंटर्स इनसाइड द बॉडी, उसे इन्वेडर कहते हैं। और यहां पे वो इन्वेडर क्या है, वायरस। कौन सा, कोरोना वायरस मेक्स। और जैसे ही ये हेल्दी सेल में जाता है, जैसे ये हेल्दी सेल्स में जाता है, अपनी कॉपीज बनानी शुरू करता है। उन हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, नाश करना शुरू करता है उन हेल्दी सेल्स का। ठीक है। द न्यू कोरोना वायरस लैचेस इट्स स्पाइकी सरफेस प्रोटीन्स टू रिसेप्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टू नो। ये अब कैसे इन्फेक्शन करेगा, ये अभी हम आगे डायग्राम में पढ़ेंगे। ये जो कोरोना वायरस है, न्यू कोरोना वायरस नहीं है ये न्यू वाला कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस तो पहले भी आते रहे हैं। दिस इज न्यू कोरोना वायरस लैचेस। लैचेस मतलब आपने कुंडी लगाना। जब आप किसी चीज को लॉक करते हो, यू यूज लैच, जिसे आप कहते हैं चिटकनी लगा दो। ठीक है। तो इसके जो स्पाइकी प्रोटीन है ना, ये जो आपने देखी अभी स्पाइक, ये क्या कर देते हैं, लॉक हो जाते हैं हमारे बॉडी में। ये सेल्स हैं, बॉडी सेल, और ये बॉडी सेल के ऊपर ना एक तरह की कुछ रिसेप्टर होते हैं, एक तरह का प्रोटीन होता है। ठीक है। ये हमारा बॉडी सेल है, ये अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है। अभी मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी प्रॉपर उसमें ऑन द बोर्ड। अब इसने क्या किया, ये जो इसके स्पाइकी प्रोटीन है, ठीक है, इसने क्या कर दिया, अपने आप को इनके साथ लॉक कर दिया। ये जो प्रोटीन था, इस प्रोटीन का नाम मैं आपको बताऊंगी। इस प्रोटीन को नाम दिया गया ये रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर, नेक्स्ट मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ नेक्स्ट अच्छे से। पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, then I tell you on the board. Specifically, the viral proteins burst into cells through ACE2 receptors. Burst मतलब एंट्री ले ली, प्रोटीन्स एंटर into the cells through ACE2 receptors। और मैं आपको भी बताती हूँ ACE2 receptors क्या होते हैं। Once inside, the coronavirus hijacks healthy cells and takes command. Eventually, it kills some of the healthy cells. अब इसका मतलब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में डायग्रामेटिकली। अब पढ़ते हैं कि क्या है ये, क्या नहीं, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। कोरोना वायरस इन्फेक्ट्स योर बॉडी बाय एंटरिंग हेल्दी सेल्स। कोरोना वायरस कैसे आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, हेल्दी सेल्स में एंट्री लेकर। ये गया, इसने एंट्री ली, अब ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहा है। तो अब कैसे इन्फेक्ट करता है, जैसे अंदर इसने एंट्री ली, ये बहुत सारे मल्टीपल सेल रिप्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन करता है अपने जैसे बहुत सारे वायरसेस का। ठीक है। रिप्रोड्यूस मल्टीपल सेल्स बना देता है। अभी तो वो एक ही सेल का है ना वायरस, अब वहाँ जाके अंदर एंट्री लेके बहुत सारे अपने सेल्स बना देता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बना देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, आई टेल यू। देखो पहले हम यहाँ पढ़ते हैं, व्हाट इज द कोरोना वायरस एंड हाउ। इसको पूरा प्लीज माइंड खोल के, आंखें खोल के, कान खोल के सुनना, बस मुंह बंद होना चाहिए। ठीक है। मुंह कब खोलना है, जब हम क्वेश्चन आंसर्स सेशन में आएंगे, इट विल बी लाइव सेशन, तब आप जी भर के
दिल खोल के सवाल किए करना अच्छे से, बट इसको प्लीज़ अच्छे से समझना. दैट्स आई एम गोना टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. व्हाट इज द कोरोना वायरस एंड हाउ डज इट अटैक, मतलब कैसे अटैक करता है हेल्दी सेल्स को बॉडी के. RNA विल बी डिपॉजिटेड इन अ ह्यूमन सेल. सबसे पहले क्या हुआ, ये क्या है, ये ब्लू कलर की ये बड़ी सी, ये आप देख रहे हो, ये जिसकी पॉइंट, ये देख रहे हो आप, ये जिसका पॉइंट पॉइंट ऐसे ऐसे नजर आ रहा है, ये सब क्या है, ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट है. नंबर 1, ये सारी क्या है, ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट है. मैंने कैसे बताया था आपको कैसे स्प्रेड होता है, ये पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ड्रॉपलेट्स, उसके ड्रॉपलेट में क्या है, वायरस है. अब ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स जिसमें वायरस है, कहाँ एंट्री ले लिया, सामने वाले पर्सन जो बिल्कुल नॉर्मल है उसने उन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया. ठीक है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अब इसने ये जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स थी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंट्री ली, नोज में गए, माउथ में गया. ठीक है, ये रहा ये वायरस, ये ड्रॉपलेट के अंदर वायरस है पूरा. ऐसा ही था, ऐसी शेप देखी थी हमने, ऐसी शेप देखी थी न्यू कोरोना वायरस की. ठीक है, वेल द वायरसेस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द RNA. अब ये क्या है, ये वायरस की मैंने आपको बताया एनवेलप, ये अभी हमने देखा था. एक मिनट, इसको मैं आपको बताती हूँ विद डिफरेंट शेड. यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये एनवेलप अभी बताई थी मैंने वायरस की. इसको मैं पूरा उसके ऊपर ही करती हूँ. ग्रे लाइनिंग आपको शायद अच्छे से विजिबल नहीं होगी, तो आई एम मेकिंग दिस ग्रे लाइनिंग ब्लू. ठीक है, ये जो राउंड ये इसका एनवेलप है, अभी हमने देखा उस पर क्या लगे हुए एनवेलप पे, ये स्पाइकी प्रोटीन्स, प्रोटीन स्पाइक्स. स्पाइक प्रोटीन्स हेल्प द वायरस फाइंड एंड अटैक ह्यूमन सेल्स. ये जो है ना, ये चिपकता कैसे है हेल्दी सेल्स में हमारी बॉडी के, ये इसी के थ्रू, ये जो प्रोटीन स्पाइक्स है इसी के थ्रू चिपकता है हमारे हेल्दी सेल्स को. ठीक है, ये इसका RNA है, ये वायरस का. ठीक है, ये वायरस का अपना ये RNA है, इसका जेनेटिक मटेरियल, इसका वायरस का. ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, RNA विल बी डिपॉजिटेड इन अ ह्यूमन सेल. ये इसका वायरस का RNA. अभी समझ लो ये ड्रॉपलेट के अंदर है, ह्यूमन सेल में एंट्री ले ली. अब वो ह्यूमन सेल क्या है, ये पूरा ह्यूमन सेल है. ये ड्रॉपलेट गई, ये जा रही है, देखो देखो देखो, वायरस 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 वायरस. ठीक है, ये ड्रॉपलेट आई, ये समझ लो बीच में क्या आ गया, माउथ के थ्रू, माउथ या फिर नोज, इसी के थ्रू एंट्री लेगी. ठीक है, ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट, ये बीच में माउथ नोज है, ये हमारा ह्यूमन सेल है, ये बड़ा सा ना. मैं इसको आपको इस शेड से दिखाती हूँ, फिर मैं आपको एक बोर्ड पे भी अच्छे से बताऊंगी इसको. ये रहा, ये है, दिस इज द सेल. थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इट्स गोइंग ऑन, जस्ट प्लीज एक्सक्यूज. ओके, सो अगर आप देखो, ये वायरस ये माउथ और नोज के थ्रू कहाँ एंट्री ले ली उसने, ये एंट्री ले रहा है, ये किस में, हेल्दी सेल के अंदर. और इस हेल्दी सेल के बाहर हर एक सेल की अपनी एक क्या होती है, कवरिंग होती है. पहले आप ये समझ लो ह्यूमन सेल कैसे होता है, ये आपका मोटा मोटा थोड़ा सा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जनरल गुड टू नो इन्फॉर्मेशन फॉर यू. पहले हम देख लेते हैं कि ह्यूमन सेल क्या है, तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा. लेट्स गो टू अ डिफरेंट, हम बोर्ड पे जाते हैं अपने, हमारा बोर्ड बहुत बहुत हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए. वेल, ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर.
ठीक है जी। ह्यूमन बॉडी का जो हमारी बॉडी का सेल है ये देख लो पहले तो, ये समझ लो हमारी बॉडी सेल है। ये बाहर है सेल की अपनी कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियस। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं so that you can see well. इसको हम किसी और शेड से डिफाइन करें, if that would be visible on this board. No, white would be I think the recommended one. Okay, ये है अंदर छोटा सा न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा क्या आपको मिलेगा, ये अंदर क्या मिलेगा आपको न्यूक्लियस के अंदर होगा डीएनए। ये ऐसे ऐसे पड़े होंगे डीएनए, ठीक है, ये इसका सेल का अपना डीएनए है। ठीक है, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंड होता है। कल किसी ने मुझसे भी पूछा था ये डीएनए का, मैं बताती हूँ आपको। दिस इज somebody asked me डीएनए की शेप, ये डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए। ठीक है, तो दिस इज डीएनए। ठीक है, सेल के अंदर ये डीएनए है। अब ये न्यूक्लियस एंड दिस आउटर, इसके अंदर ये सारा क्या है, ऐसे लिक्विड 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 लिक्विड। ये सेल का अपना लिक्विड सा ऐसे ऐसे होता है, लिक्विड फॉर्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं इसे। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब सेल का अपना ही फ्लूइड। ठीक है, सेल का फ्लूइड। अब इसके अंदर क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, इस पे एक तरह के प्रोटीन होते हैं, उसको कहते हैं ACE2। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन। इसके ऊपर मिलेंगे ये मेम्ब्रेन पे ACE2 प्रोटीन। ठीक है, और ये ACE2 की फुल फॉर्म में आपको मैं एक फुल फॉर्म का वो दूंगी। आई विल गिव यू समथिंग ऑन इन द नोट्स। ये ACE2 रिसेप्टर्स, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन। They are a type of protein covering some cell types in the body. कुछ ऐसे सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो सेल्स किसी भी ऑर्गन की कवरिंग पे मिल सकते हैं, सराउंड किसी भी, जैसे लिवर, ठीक है, या हो सकता, और लंग्स हो गए, एल्वियोलाई सैक्स, उनकी भी आपको कवरिंग, मतलब उनमें भी मिलेंगे ये सेल्स। उनके सेल्स, उनके जो सेल हुए एल्वियोलाई के, जो हमने पढ़ा एयर सैक्स, लंग्स, एल्वियोलाई क्या होते हैं, लंग्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे राउंडेड फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। आई टोल्ड यू येस्टरडे व्हेन वी वर स्टडिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफ यू रिमेंबर। हाउएवर, कोई डाउट है उसको अभी नोटेड डाउन कर लो। ओके, ये एक तरह का, इस सेल मेम्ब्रेन पे क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जिसे कहते हैं ACE2। इसका नाम दिया गया A फॉर एप्पल, C for Charlie, E as in England, ACE2. A type of protein, on
the cell membranes of, I am writing it again, just wait. ठीक है जी, अब मैं आपको बता रही, अ टाइप ऑफ प्रोटीन, type of protein on the cell membranes of some cell types in the body. हमारी बॉडी में कुछ तरह के सेल्स होते हैं, उनकी कवरिंग पे हमें ये ACE2 नाम के प्रोटीन्स मिलते हैं। अब ये प्रोटीन वायरस के साथ कैसे ACE2 प्रोटीन के होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन पे वायरस को अटैक करने का एक रास्ता, जरिया मिलता है, ये हम देखेंगे। ये वायरस है, मान लो ये वायरस आया, कोरोना वायरस, जिसे SARS-CoV-2 कहते हैं, न्यू कोरोना वायरस को। इस कोरोना वायरस ने क्या किया, जैसे इसने बॉडी में एंट्री ले ली है, किसके थ्रू एंट्री ली है, नोज या फिर थ्रोट के जरिए से एंट्री ली, ठीक है। अब ये कोरोना वायरस ने जब एंट्री ली तो ये बॉडी सेल में गया, बॉडी सेल्स में गया तो बॉडी सेल्स, कुछ ऐसे बॉडी सेल्स मिले उसको हमारी बॉडी में, जिनकी कवरिंग पे, जिनकी मेम्ब्रेन पे ये प्रोटीन था, ACE2 नाम का प्रोटीन था, ठीक है। इस ACE2 नाम के प्रोटीन ने क्या काम किया, इट वर्कड एज अ रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला, किसी चीज को रिसीव कर रहा, कोई चीज आ रही है उसको इसने रिसीव करा। इस कोरोना वायरस को उसने क्या कर लिया, रिसीव वाला काम किया। जैसे ये इसके साथ, इसने क्या कर दिया, इसके साथ एक लॉक बना लिया, ठीक है। जैसे इसने, कोरोना वायरस ने ACE2 रिसेप्टर के साथ एक लॉक बनाया, इसने क्या किया, सेल में अपनी एंट्री लेने की जगह बना ली। इसने जब जगह बना ली, ठीक है, अब ये क्या करेगा, पूरा सेल के अंदर ले चला जाएगा, सेल के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। हाईजैक क्या होता है, जब आप पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते हो। अब ये जो हेल्दी सेल था, ये जो ह्यूमन सेल था, जस्ट ह्यूमन सेल स्ट्रक्चर, ये हेल्दी सेल मान लो, ये हेल्दी सेल है, हेल्दी मतलब फिट सेल है, बिल्कुल फिट हेल्दी सेल मान लिया हमने, ये एक हेल्दी सेल है। अब इसने, कोरोना वायरस ने, इसने लैच कर लिया इस प्रोटीन के साथ ACE2। इस ACE2 प्रोटीन ने क्या काम किया, रिसेप्टर का काम किया, उसको रिसीव करने का वायरस को काम किया, ठीक है। ये बाहर से कोरोना वायरस किस फॉर्म में आया, एज एन एंटीजन, बाहर की चीज़। एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंट्री ले रहा है, चाहे वो वायरस या बैक्टीरिया, उसे क्या नाम देंगे, एंटीजन, जो कि इन्फेक्शन फैलाने आया। अब इसने रिसेप्टर का काम किया, अब इसने क्या कर दिया, अंदर एंट्री लेते ही ना सारा सेल को हाईजैक करना शुरू कर दिया, इस पूरे सेल का जो सिस्टम है अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, जिससे सेल की अपनी पहचान, सेल क्या हो जाएगा, डैमेज, सेल को नुकसान पहुंचाएगा। तो जिस वजह से ये हेल्दी सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब इसने क्या किया, जब इसने इसको हाईजैक कर लिया, इसने अपने RNA अंदर घुसा दिया, इसका RNA अंदर एंट्री ले लेगा वायरस का, और ये अंदर ऐसा सिस्टम से ये सेल के जो सिस्टम है उसको यूज करना शुरू करेगा। सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, हमारे ह्यूमन सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। सेल को भी अपने आप को फीड करने के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सेल को भी तो हेल्दी रहना है, जिंदा रहना है, तो सेल के अंदर भी एक मशीनरी है पूरी, इधर प्रोटीन बनता है, सब यहाँ पे DNA फॉर्मेशन होता है, ठीक है, नए DNA, अब जो नए एक सेल से दूसरा नया सेल बनता है, ये सेल बूढ़ा भी तो होगा कभी,
फिर ख़त्म होगा, फिर नए सेल बनेंगे, ठीक है। तो बहुत से प्रोसेसेस चलते रहते हैं हमारी बॉडी सेल्स के ज़रिए से, और बॉडी सेल के अंदर भी। तो हमारी बॉडी के अब हमारे प्रोटीन को, अब जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे इसको भी अपनी एनर्जी बना के रखनी है, हेल्दी रहना है, तो इसको भी अपना प्रोटीन चाहिए फीड होने के लिए। तो ये बॉडी ये अपने काम के लिए प्रोटीन भी बनाता है सेल। अब ये क्या करेगा, ये तो आ गया अंदर वायरस, ये इसका ही प्रोटीन यूज़ करना शुरू करेगा, हेल्दी सेल का सारे सिस्टम को यूज़ करना, हाईजैक कर लेगा, उस पर पूरा कंट्रोल ले लेगा और अपने बहुत सारी कॉपीज़ बनानी शुरू कर देगा, बहुत सारे आरएनएस बना देगा, जिससे हर एक अलग अलग आरएनए से नए वायरस बन जाएंगे। ये अब हम देखेंगे डायग्रामेटिकली प्रीवियस जो अभी प्रेजेंटेशन चल रही थी उसमें, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको चीज़ बताई, ये ड्रॉपलेट है, इसमें वायरस है। अब ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट है, इसके अंदर ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट सेंटर। अब इसने इस इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट ने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एंट्री ले ली। किसके ज़रिए से एंट्री ली, किसके ज़रिए से, नोज या माउथ के थ्रू, ठीक है। अब जब वो माउथ के थ्रू अंदर गया तो थ्रोट में गया पहले, ठीक है। थ्रोट से फिर नीचे उतरकर रेस्पिरेटरी सिस्टम के, व्हेन इट गोज डाउन इन द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हाट कम्स, लंग्स आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो वहाँ पे उसको कुछ ऐसे सेल्स मिले जिनकी आउटर मेम्ब्रेन कौन से प्रोटीन से कवर थी, ACE2 प्रोटीन से, ठीक है। वहाँ से ये रहा ACE2 प्रोटीन है, ये सॉरी ये एक सेल है, ये सेल की कवरिंग है, ये एक सेल है, मान लो बॉडी का हेल्दी सेल है, दिस इज हेल्दी सेल ऑफ द बॉडी। और मान लो ये हेल्दी सेल कहाँ पे है, लंग्स में है, ये लंग्स के हेल्दी सेल में गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो इसकी कवरिंग पे ये क्या लगे हुए हैं, ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन पे ये शेप बना रखी है एक तरह की, ACE2 रिसेप्टर, ACE2 प्रोटीन्स जो हैं। ये अब इसने क्या किया, ये अपने स्पाइक प्रोटीन इसके साथ लैच कर दिया, लैच जैसे हुक आप कुंडी लगाते हो ना, पूरी तरह से लॉक कर दिया। इसने अपने आप को, इसने क्या किया, इसके थ्रू ये जो ACE2 रिसेप्टर है, इसने यहाँ से एंट्री ले ली। वायरस ने क्या कर दिया, ये ACE2 प्रोटीन के जरिए, ये जितने भी ये ब्लू ब्लू बने ACE2 प्रोटीन, ये मैंने इसको नहीं बोला हुआ नोज एंड माउथ, ये मिडल का पार्ट है। अभी इसने नोज और माउथ के थ्रू एंट्री ली, किसमें, ACE2, ये सेल मेम्ब्रेन है, उस पर क्या है, ये प्रोटीन है ACE2 नाम का। इसने क्या किया, वायरस को रिसीव किया। यहां से जब इसने अंदर गया ये वायरस, इसने क्या किया, इस सेल के अंदर क्या छोड़ दिया, अपना RNA। इसने अटैक करना शुरू किया सेल को, ठीक है। ये अपना RNA इसने फैला दिया। अब क्या हुआ, पहले स्पाइक प्रोटीन्स टारगेट दीज, पहले क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप कैसे इसने इन्फेक्शन फैलाना शुरू किया, पहला स्टेप ये था, पहला इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स एंटर द रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स ने रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंट्री ली, नोज और माउथ में, ठीक है। अब क्या हुआ, वो थ्रोट में गया, फिर वायरस थ्रोट से फिर लंग्स में आया। अब उसने क्या किया, ये सारे ड्रॉपलेट्स है इन्फेक्टेड वायरस के साथ। अब ये वायरस इन ड्रॉपलेट से निकल के कहाँ एंट्री ले लिया उसने, आपके हेल्दी सेल में, बॉडी के। अब ये हेल्दी सेल में गया, उस हेल्दी सेल के बाहर क्या लगे हुए थे, ACE। हेल्दी सेल की जो कवरिंग है किससे बनी हुई है, कुछ सेल्स की, बॉडी के ऐसे कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनकी कवरिंग में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, एक तरह का प्रोटीन होता है उनकी मेम्ब्रेन पे। तो वो उसने उसके साथ लैच कर लिया हुक, ठीक है। लैच करते ही उसने अपनी एंट्री लेनी शुरू की सेल के अंदर। सेल के अंदर एंट्री ली, अपना RNA छोड़ दिया उसने सेल के अंदर, हाईजैक करना शुरू कर दिया सेल को। अब ये स्पाइक प्रोटीन्स टारगेट दीज ACE2 रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन्स। यही जो मैंने आपको भी बात बताई, ये जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, इसके किसके थ्रू ये हुक करता है, ये अपने स्पाइक प्रोटीन्स की वजह से हुक कर लेता है। स्पाइक प्रोटीन्स टारगेट दीज ACE2 रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन्स, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। द स्पाइक प्रोटीन्स बाइंड्स द वायरस, डिपॉजिट्स इट्स RNA इनसाइड द सेल। ये जो स्पाइक प्रोटीन क्या कर देता है,
बाइंड्स एंड द वायरस डिपोजिट्स इट्स आरएनए इनसाइड द सेल्स। अब ये स्पाइक प्रोटीन जो था इसके साथ बाइंड कर गया और अपना आरएनए को उसने सेल में छोड़ दिया। द सेल प्रोड्यूसेस न्यू वायरस। अब इस आरएनए, इस ये जिसने अंदर आरएनए छोड़ा, इसने सेल की पूरी मशीनरी को यूज़ करना शुरू किया, उसके सिस्टम को यूज़ करना शुरू किया नए आरएनए बनाने के लिए, ताकि वो उस नए जो इतने सारे आरएनए बने उससे बहुत सारे वायरस और बन गए। ये सारे वायरस बने हुए। द सेल प्रोड्यूसेस न्यू वायरस पार्टिकल्स फ्रॉम द आरएनए। अब इसी सेल के अंदर बहुत सारे आरएनए बने और वो आरएनए ने अलग अलग तरह के वायरस, बहुत सारे और कोरोना वायरस बना दिए। ये रहे। इसने क्या किया, सेल की मशीनरी को यूज़ करना शुरू कर दिया, सेल के केमिकल्स को यूज़ करना शुरू किया। भाई उसको भी नया रूप लेना तो कुछ ऐसा चाहिए ना, न्यूट्रिशन। उसने सारा सेल से लिया, सारी मशीनरी सेल की यूज़ की। ये अभी वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये वही है। इसको बताने के बाद हम नेक्स्ट चलेंगे tomorrow. We will be having once you see this recorded video first, okay? जो अभी चीज़ें पढ़ी मैं आपको वही इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में बता रही हूँ थ्रू द डायग्राम, ओके? अभी हमने इतना समझना है और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ आस्क मी टुमारो और मे बी आई अनाउंस द टाइमिंग ऑफ द लाइव क्लास. Once this video would be over, I'll announce the class timing for the live session where you can ask questions and answers. Okay. भाई साहब आ गए फिर से. कोरोना वायरस. वेल ये अब आपको पूरा, अब तो मेरे ख्याल से माइंड में ऐसे बैठ गया होगा, स्पाइक प्रोटीन आरएनए एंड दिस कोरोना वायरस स्ट्रक्चर, am I right? तो ये है कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 वायरस. ये क्या है? ये इसके स्पाइक प्रोटीन, ये जो हमारे ये सेल है पूरा, ये सेल है, ये जो आपको पर्पल में दिख रहा है ना, ये हेल्दी सेल है. मान लो एक हेल्दी सेल है, उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? ये उसकी मेम्ब्रेन पे, सेल की ये मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग को सेल की क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन. अब उसकी ये उस सेल मेम्ब्रेन पे क्या है? ACE2 प्रोटीन है, उसने रिसेप्टर का काम किया, रिसीव किया. ये देखो इसके स्पाइक प्रोटीन है ना, ये जो स्पाइक प्रोटीन की वजह से ये चिपक पाता है, हुक हो पाता है, वो लैच हो पाता है. हमारे जो सेल के ऊपर जो ACE2 प्रोटीन होता है, ये अपनी शेप की वजह से, पता है, उसको टेंडेंसी मिलती है. लेकिन कुछ ऐसी मेम्ब्रेन है सेल की जिन पे इस तरह के ACE2 रिसेप्टर नहीं होते. हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के सेल हैं. ये एक तरह के ऐसे सेल होते हैं हमारी बॉडी में जिनमें ACE2 प्रोटीन उनकी मेम्ब्रेन पे होता है, तो इसको जगह मिल जाती है भाई अपना जाल फैलाने की, उनके थ्रू एंट्री लेने की. तो ये इससे ACE2 रिसेप्टर, ये उसने स्पाइक प्रोटीन लैच किया. अब इसने क्या किया? ये वायरस आ गया, ये ACE2 रिसेप्टर, ये प्रोटीन ले गया इसको अंदर. अब क्या हुआ? द वायरस एंटर्स द सेल बॉडी एंड रिलीजेज इट्स आरएनए. अब वायरस ने, ये देखो, सेल से अंदर एंट्री ले ली, इसके जरिए से इसके जरिए से ये सेल के अंदर एंट्री ले ली. ये क्या है? आउटर, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन जा रही है, ये जितनी भी सेल मेम्ब्रेन, ये एंट्री ली इसने. अब इसने क्या किया? रिलीजिंग द वायरल जीनोमिक आरएनए, रिलीजिंग द वायरल. अब इसने क्या किया? अपना आरएनए सेल के अंदर रिलीज कर दिया, जो अभी आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया थ्रू दैट डायग्राम. अब क्या हुआ? होस्ट राइबोसोम, ये अभी आप आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली राइबोसोम क्या होता है, अभी इसको छोड़ो. यहाँ पे रिएक्शंस हुए सेल के अंदर. कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसलेशन. बट मैं आपको इसकी डिटेल्स में अभी मैं नहीं ले जाना चाहती, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट. कि चलो एनीवेज, ये ट्रांसलेशन क्या हुआ? एक तरह का ये रिएक्शन हुआ अंदर, इनसाइड, ये सेल के अंदर हो रहे हैं सब रिएक्शन. जब ये आरएनए अंदर फ्री छोड़ दिया उसने अपना, देन यहाँ पे एक और रिएक्शन हुआ. जब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस हुआ,
आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए रेप्लिकेज, इसके थ्रू इसने क्या करना शुरू किया, ट्रांसलेशन प्रोसेस के जरिए से इसने अपनी आरएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हुआ, पहले ट्रांसलेशन देन आरएनए पॉलीमरेज. I'll tell you this tomorrow in the another session, this thing in detail, which is very important to know. प्रोटियोलिसिस, ये एक तरह का और रिएक्शन हुआ सेल के अंदर. जब ये रिएक्शन हुआ आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये एक तरह का चेन रिएक्शन होता है. सॉरी. देन आरएनए रेप्लिकेशन, इस रिएक्शन के बाद ट्रांसलेशन, उसने क्या किया, प्रोटियोलिसिस हुआ जिससे प्रोटीन बना. इस रिएक्शन से, प्रोटियोलिसिस से इसकी एनवेलप तैयार हुई. भाई वो भी तो जरूरी है, इसका क्राउन तैयार करना. इस रिएक्शन से सेल के अंदर ही रिएक्शन हो रहा है, प्रोटियोलिसिस हुआ, इसका क्राउन तैयार हुआ वो प्रोटीन वाला. ठीक है. ट्रांसलेशन प्रोसेस से क्या बना, आरएनए रेप्लिकेट हुआ, आरएनए बहुत सारी कॉपीज बनी इसकी आरएनए की. अब क्या हुआ, असेंबली एंड पैकेजिंग. अब इसने क्या किया, भाई पूरा वायरस बनना है ना, पैकिंग हुईगी ना पूरी, एनवेलप के अंदर आरएनए जाएगा, तो ये असेंबली हुई. असेंबली मतलब ये दोनों इकट्ठे हुए और पैकिंग में आ गए, तो एक नया वायरस तैयार हो गया. दिस इज व्हाट इट डज इन द सेल. ये इस तरह से सेल में अपनी कॉपीज बनाता है और सेल को इस तरह से हाईजैक कर लेता है. न्यू विरियॉन्स, दैट इज वायरस पार्टिकल्स आर रिलीज्ड. अब विरियॉन्स क्या होते हैं, ये वायरस पार्टिकल ही तो हैं, ये जो वायरस बना. अब ये नए वायरस क्या हो जाएगा, इस सेल से इसने अपना काम कर दिया, बहुत सारे आरएनए से इसने बहुत सारे वायरस बना लिए. अब ये बाहर फैलना शुरू होगा बॉडी के अंदर. ये देखो इतने सारे आरएनए, जितने आरएनए बनेंगे उतने ही वायरस बनेंगे, उतने ही यहाँ पे प्रोटीन कवरिंग्स बनेंगी, और फिर पैकिंग होगी इनकी आरएनए और इस प्रोटीन कवरिंग की, और ये नए वायरस बन के बाहर ये बॉडी में फैलना शुरू करेंगे. फिर ये और हेल्दी सेल को अटैक करना शुरू करेगा. अब ये नया वायरस बना, ये अब दूसरा हेल्दी सेल ढूंढेगा, ये वाला वायरस दूसरा हेल्दी सेल ढूंढेगा, ये अब हेल्दी सेल में अटैक करते जाएंगे. इस तरह से सेल, हेल्दी सेल डैमेज होते जाते हैं काफ़ी सारे जब ये इसका इन्फेक्शन होता है. ठीक है. बिफोर मूविंग, मैं अब 1 मिनट में आपको बस ये सारा ओवरऑल बताने वाली हूँ कि कैसे ये इन्फेक्शन कॉज करता है. दिस इज SARS-CoV-2 वायरस. ठीक है. ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन पे एक तरह के क्या लगे हुए हैं, प्रोटीन. ये हर सेल की कवरिंग पे नहीं होते. कुछ पर्टिकुलर सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर जो आपको लिवर में भी मिलेंगे, किडनी में भी मिलेंगे और लंग्स में भी मिलेंगे, जिनकी कवरिंग पे ना इस तरह के ACE2 रिसेप्टर होते हैं. ठीक है. वो क्या है, ACE2 रिसेप्टर एक तरह का प्रोटीन है. उसके जरिए से इसको अंदर एंट्री लेने का रास्ता मिल जाता है. जब ये अपना रास्ता लेता है, ये देखो ACE2 रिसेप्टर, ये वायरस को, ये इससे चिपक गया ना, लैच बिल्कुल चिपक गया. जैसे कुंडी आप करते हो, चिटकनी लगाते हो तो एक दूसरे में फिक्स हो जाता है. ये देखो इसमें फिक्स हो गया ना ये वायरस को, ये अब अंदर लेकर आ गया, वो प्रोटीन के जरिए से अंदर आया तो इसने क्या कर दिया, वायरस ने अपना आरएनए छोड़ दिया. यहाँ पे रिएक्शंस हुए कुछ सेल के अंदर, इसने सेल के केमिकल्स को यूज करना शुरू किया, सेल के सिस्टम को पूरा यूज करना शुरू किया, तो ये रिएक्शंस हुई. ट्रांसलेशन प्रोसेस हुआ इस तरह का कि आरएनए यहाँ पे पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसके थ्रू, इस एंजाइम के थ्रू आरएनए रेप्लिकेज, ये एक एंजाइम है, तो वीआरएनए रेप्लिकेज, इस एंजाइम ने काम किया. उसने क्या किया, ये ट्रांसलेशन आरएनए रेप्लिकेज हुआ. रेप्लिकेज मतलब बहुत सारी इसकी रेप्लिकेशन हुई, कॉपीज बनी आरएनए की. अब ये बहुत सारी कॉपीज बन गई. अब इसकी कवरिंग भी बनानी है. दिस विल बी डन थ्रू प्रोटियोलिसिस रिएक्शन. प्रोटियोलिसिस मतलब यहाँ पे अब प्रोटीन बन रहा है इसका. प्रोटियोलिसिस रिएक्शन हुआ, प्रोटीन कवरिंग बनी इसकी, स्पाइक प्रोटीन डेवलप हुए. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों, एक आरएनए एक प्रोटीन कवरिंग यहाँ पे असेंबल, इकट्ठे हुए, पैकिंग हो गई, असेंबली एंड पैकेजिंग, और एक नए वायरस निकलकर जितने आरएनए थे, उतनी प्रोटीन कवरिंग बनी, उतने ये
वायरस बन के दूसरे नए हेल्दी सेल को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो गए, बाहर निकल गए इस सेल से, इसको तो डैमेज कर दिया, इसको हाईजेक कर लिया, अब ये नए सेल में अपना जाल फैलाने, नए हेल्दी सेल में अपना जाल फैलाने चले गए. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज सेशन. ओके, थैंक यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय.